hi, namaskar, Jai Jagannath. Welcome back to my channel. And you hope, guys, hope you all are doing very well with your preparation for PGT, TGT, EMRS. And as you all know that the preparation series has already started since a month ago. So please, guys, do watch all the preparation series for PGT, TGT, and other TET exam. And today we are going to discuss about the polity MCQs for PGT, TGT for the social studies TGT, and for PGT like those who are preparing for political science or Indian polity. Okay, so guys, let us start the video. ये जो वीडियो है वो दोनों इंग्लिश एंड हिंदी में है, सो दोनों लैंग्वेज के कैंडिडेट के लिए बहुत फेवरेबल है. सो गाइस, लेट स्टार्ट द वीडियो. Before starting the video, I would like to request to all my dear friends, please to subscribe my channel, share and like this video. Thank you. The question number first जो है, which act extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed classes. जो depressed classes थे उन लोगों के लिए एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किया, जो कि हमारे रिलीजन के बेसिस पर जो सेपरेशन हुआ था, वो उसके हिसाब से जो इलेक्टोरेट है, जो हमारी वोटिंग राइट्स के शायद जो हमारे इलेक्टोरेट डिवाइडेड होते हैं कि नहीं, जो ए स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, वो इसी तरह एक कम्युनल बेसिस पर, एक रिलीजन का बेसिस पर वो सेपरेशन किया था. उसमें कौन सी एक्ट में हमारा ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया था, कौन सी एक्ट के दौरान? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. कौन सा एक्ट है जहां पर हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास के लिए प्रोवाइड किया था? वो है ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. ओके, होप यू guys understand all the conception. Then question number 2, a Lok Sabha speaker addresses his or her resignation to whom among the following. जो चार ऑप्शन यहाँ पर है वो ऑप्शन में चार लोग हैं, जैसे कि डेप्यूटी स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, उस उनमें से किसको वो लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं अपनी रेजिग्नेशन वो दायर करते हैं उनको? वो है डेप्यूटी स्पीकर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर. कौन किसको वो देते हैं? वो है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, डेप्यूटी स्पीकर. ओके, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 3, how many members of Rajya Sabha are nominated by President of India? President of India, how many members of Rajya Sabha are nominated by President of India? President of India nominated option number 1 2, option number B 11, option number C 12, ऑप्शन नंबर डी 18. कितने लोग राज्यसभा को प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया था? यहाँ पर चार ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 A B C D. You have to choose one the correct option among this. The option number C is the correct answer. 12 people are nominated by President of India to the Rajya Sabha. Okay. Then question number 4. The Constitution of India derives its ultimate authority from whom? Like Supreme Court of India, Parliament of India, People of India, or Constituent Assembly of India. The Constitution of India derives its ultimate authority from whom? The people of India. Okay, the option number C is the correct answer. The people of India. इसे भारत के लोग से अपने संविधान के अंतिम अधिकार प्राप्त करता है. Then Delhi was called National Capital Territory by which amendment? कौन सी amendment जो Constitution of India की Delhi was familiar with known as the Capital Territory of India? 62 amendment, amendment 91, amendment 90 और amendment 69. कौन सी amendment में हम दिल्ली को हमारे नेशनल कैपिटल टेरिटोरी के से जाना गया है? वो है ऑप्शन नंबर डी 69th 69th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि 1991 में हुआ था. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर.
देन क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 to 6 हो गया है. So, okay. Which of the following statement is not correct regarding directive state principle? जो directive state principle है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो उसका फीचर या जो भी कोई है यहाँ पर, उसका कौन सी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है उसके बारे में. ठीक है, कौन सी मत यहाँ पर सही नहीं है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में, वो है डीपीएसपी या डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स एम टू एनफोर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, और डीपीएसपी आर नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर. और डीपीएसपी के लिए हम कोई भी कोर्ट पे नहीं जा सकते, जैसे कि कोई डीपीएसपी का उल्लंघन किया या नहीं माना उसको, इसके लिए कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है. ठीक है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट के लिए है. तो उसके बाद क्या है, डीपीएसपी पॉलिटिकल एंड मोरल सैंक्शन. ओके, जो कि पॉलिटिकल एंड मोरल सैंक्शन होते हैं यहाँ पर. डीपीएसपी कैन नॉट बी एनफोर्स ऑटोमेटिकली एंड रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन. यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है, जैसे कि DPSPs aim to enforce political democracy in the country, जो कि political democracy का enforcement के लिए DPSP, ये जो मत है DPSP के लिए ये सही नहीं. तो ऑप्शन नंबर A is the correct answer for the question number 6. And from which country India's brought its federal system? जो India's constitution, they borrowed so many ideas from other constitution of all over the world. So it is called as a borrowed constitution also in critical way. So जो फेडरल सिस्टम है वो कौन से कंट्री से इंडिया लाया गया है वो आइडिया को, वो है यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा और स्विट्जरलैंड. वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कनाडा. And question number 7, which of the following is not the domain of union government? ओके, हमारे तीन ही लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कंकरेंट लिस्ट. जो होता है सेंट्रल लिस्ट में होता है हमारे, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में. ये जो तीनों लिस्ट है यहाँ पर, यूनियन लिस्ट में हमारे कितने सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने आइटम होते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में जो कितना आइटम. यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है, जो कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज एंड अमेंडमेंट ऑल दिस पॉलिसीज फॉर द ऑल ओवर द कंट्री, जो है 97 थी, अभी तो 98 था यूनियन लिस्ट का आइटम. देन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कितना है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ओनली कैन मेक अमेंडमेंट एंड लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट. if there is any requirement on the central level, central government also can makes. ओके, देन स्टेट गवर्नमेंट का कितने सब्जेक्ट है, 66 सब्जेक्ट है. देन कंकरेंट लिस्ट का 47 है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकता है अपनी लॉज एंड पॉलिसी, एंड ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक देयर ओन लॉज एंड पॉलिसी एंड अमेंडमेंट विद दिस लिस्ट. तो यहाँ पर जो भी जितने भी सब्जेक्ट है या जितने भी आइटम्स है, जैसे कि रेलवे, सिटीजनशिप, करेंसी, एजुकेशन, इनमें से कौन सा डोमेन है जो कि यूनियन गवर्नमेंट में लिस्ट में नहीं आता है, वो आइदर स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में आता है. वो क्या है, एजुकेशन जो कि हमारे यूनियन लिस्ट में नहीं आता. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. देन क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सी वो एजेंसी है, कौन सी वो व्यक्ति है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने, अपनी पोस्ट, अपनी डेजिग्नेशन से वो पावर है, नेस्ट है जिसके ऊपर? लोकसभा, पार्लियामेंट, राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कौन है वो? यहाँ पर है हमारे पार्लियामेंट. ठीक है, वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो एक लंबा प्रोसीजर होता है. 56 आर्टिकल नंबर 56A बाय बी जो आर्टिकल है हमारे, उनमें से हमारे जो उस आर्टिकल में हमारे इम्पीचमेंट ऑफ इंडिया, जो कि हम प्रेसिडेंट को कैसे अपनी पोस्ट से रिमूव करें, कौन सी कंडीशन है, कौन से रूल्स है, रेगुलेशन है, कौन सी प्रोसीजर है, वो डिटेल्स में वहां पर है. यू कैन गूगल द आर्टिकल एंड यू कैन रीड ऑल द डिटेल्स. ओके, जो बुक है हमारी पॉलिटिकल साइंस के, जो हमारी पीजीटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस एक मेजर पार्ट है उनमें, इंडियन पॉलिटी जो है. सो यू कैन प्रीफर आइदर एनी एनसीईआरटी और सीबीएसई स्टैंडर्ड 10th to 12th बुक, और 9th to 10th book for TGT, and for PGT 10th to 12th, and you can refer from some graduation level book. And the most important book which is you can follow for the Indian politics part, this is M Lakshmikant Indian Polity 6th edition. Okay, जो कि लेटेस्ट एडिशन है. अगर आपके पास 6th एडिशन नहीं है तो यू कैन ऑल्सो फॉलो 5th एडिशन. अगर आपको इंडियन पॉलिटी के डिटेल्स
जानना चाहे तो यू कैन ऑल्सो राइट टू मी, आई विल डू ए वीडियो ऑन दिस. Then question number 8 के लिए option number B is the correct answer. Parliament can remove the President of India. Then question number 9, whose prior recommendation is needed for the introduction of a money bill in the Parliament? Okay, सदन के धन विधेयक पेश करने के लिए किसका पूर्व स्वीकृति चाहिए, जिसका है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ और द स्पीकर ऑफ लोकसभा. Okay, whose prior recommendation is needed for the recommendation introduction of a money bill in the parliament? यहाँ पर सही आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट. Okay, president's recommendation, prior recommendation is most needed for the introduction of a money bill in the parliament. And question number 10, what can be the maximum gap the two session of state legislature? What can be the maximum gap between the two session of state legislature? Option number A, 2 month. Option number B, 3 month. Option number C, 6 month. ऑप्शन नंबर 12 डी 12 मंथ. कितने महीने हम गैप रखते हैं दोनों ही सेक्शन में, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर में हमारे जो दो ही सेक्शन होते हैं उसमें कितने ज़्यादा ही गैप रख सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 6 मंथ. then यहाँ पर you can also refer all this question, you can write down and make a note for this question, and you can memorize also all this question. Here is very important. I put the most important question for you guys. Yes, the book is M. Lakshmikant. You can refer to whole book, and I assure you if you read the book very carefully and extensively, comprehensively, then you will leave no question about the Indian polity part. Thank you guys. Thank you so much for your time and support. Please guys do subscribe my channel, share and like this video. Thank you so much. Stay tuned for the next video.